students, so welcome in the next video on the chapter Vectors of class plus 2. So this is video number 5 on the same topic. So in our previous videos we have gone through a number of topics जैसे कि what are vectors, how to represent vector, what are the types of vectors, what are the different operations on vectors. Then we gone through the section formula, then we gone through the parallel vectors, we gone through number of questions, we gone through magnitude of vector and lot more things. और they were quite important concepts अगर हम वेक्टर की बात करें, ठीक है. सो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी, so you can check in the below description, link will be there for those videos, or you can tap on this I button just to go to those videos, ताकि आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन वीडियोस को देख के एक अच्छा लिंक इस्टेब्लिश कर पाए और इसमें समझाई जाने वाली हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाए. क्लियर? सो let us start. So today in this chapter, this topic or this video, we are firstly going to start with the components of vectors. So talking about components of a vector, firstly let me write the vector. हमने ऐसे देखा था कि वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है. वेक्टर, just a minute. Vector can be written in the form of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. We even can write vector in 2D as well, like 3i cap plus 4j cap. वेक्टर 2D में भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे i एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और j y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इट में भी रिटन इन 3D जहाँ पे x, y, z और तीनों है. क्लियर? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फर्स्टली. So let me draw this. It is in xy plane. So if you guys aware about, so r vector कहाँ होगा? 3i cap यानी कि 3 units in the direction of x axis, 1, 2, 3. Then 4 units in the direction of y axis, 1, 2, 3, 4. So point will be somewhere here. And origin से जो इस point को vector denote करेगा, that is vector r. ठीक है. अगर अभी हम देखें, दिस इज r वेक्टर विच इज नथिंग बट 3i cap and 4j cap. जैसे हमने इसे ड्रॉ किया है, वी हैव ड्रॉन फर्स्टली दिस थिंग एंड सेकेंडली दिस थिंग. दैट मीन्स दिस वेक्टर इज मेड अप ऑफ 2 vectors. One is a vector along x axis which is 3i cap and one vector along y axis which is 4j cap. yes or no? हमने ऐसे किया है ना कि 3 x axis की ओर और 4 y axis की ओर. दैट मीन्स r इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स. जो काम ये 2 वेक्टर्स कर रहे हैं, यहाँ पे r अकेला कर रहा है. दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 वेक्टर्स एंड दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड टू बी, these individual vectors are called to be components of the vector. Components of a vector. So we can understand this thing easily. जैसे component क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, like we are saying this marker. This marker is made up of a cap, a body, then a nib जिससे हम लिख रहे हैं. इनसाइड एक चीज़ है जिसमें हम इंक को डालते हैं. दैट मीन्स दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस थिंग जिससे ये बना हुआ है. ठीक है. सेकेंडली वी कैन थिंक अबाउट, एक बुक की बात कर ले. बुक में क्या होता है? पेजेस होते हैं. ठीक है. वो होती है कवर होता है. ठीक है. और वो पेस्टिंग की हुई है होती है एंड पे. सो दीज आर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए बुक. एंड लाइकवाइज दिस वेक्टर इज मेड अप ऑफ दीज 2. So these are the individual components of a vector and called to be components of the vector. But pay attention, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 3i cap is the first component, 4j cap is the second component.
बट अगर आप देखें सो कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. जैसे मैं इसे कह सकता हूँ इट इज 3 यूनिट्स इन द एक्स डायरेक्शन, इट इज 4 यूनिट्स इन द वाई डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टू बी वेक्टर कंपोनेंट्स. So these components are called to be vector components of a vector. Is that clear or not? So हर एक वेक्टर कुछ वेक्टर components के बना होता है जिसे हम individually लिख सकते हैं. And likewise, if you can see, just a minute. What are the components of this vector? Obviously, one is 2i cap, second is 3j cap, and third is 4k cap. So these are the vector components of this vector 3D vectors. Is that clear or not? So that is how we can write the components of a vector. But अगर यहाँ पे हम ऐसे करें कि instead of writing all these, I'm saying this vector is made up of 3 different values. One is 2. I'm not writing the direction. Then a value that is 3. I'm not writing the direction. Then a value that is 4. I'm not writing the direction. So if we are writing the magnitude of vector components 2, 3 and 4, these are called to be scalar components of the vectors. These are called to be scalar components of the vector. So remember, हर एक वेक्टर के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं. दे कैन बी द वेक्टर कंपोनेंट्स और दे कैन बी द स्केलर कंपोनेंट्स. इफ वी आर राइटिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दे आर कॉल्ड टू बी वेक्टर कंपोनेंट्स. अगर हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड टू बी स्केलर कंपोनेंट्स. Is that clear or not? So it should be clear what are vector components of a vector and what are scalar components of a vector. Clear? So next, moving onwards, let us start our next concept. It is quite an important concept. Again, if you can see, that is collinear vectors. That is collinearity of vectors. Firstly, let us understand the word for vectors deeply. What is the collinearity means over there? Earlier हमने हमारी previous classes में भी पढ़ा है. Like in 10th class we have studied collinearity of 3 points. In +1 class as well आपने पढ़ा होगा कि collinear क्या होता है. ठीक है? When 3 points are lying on the same line, when 3 points are lying on the same line, they are called to be collinear points. They are called to be collinear points. But guys remember, जहाँ पे हम collinearity की जो बात कर रहे हैं, हम points की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the vectors. So points और vectors में कुछ difference है. रिमेंबर दिस पॉइंट. जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसे मिक्स कर देते हैं दो कॉन्सेप्ट्स को और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है. हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है. सो दिस इज डिफरेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द collinearity ऑफ 3 पॉइंट्स, बट इट इज डिफरेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द collinearity ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? सो इफ वी टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, दो वेक्टर्स collinear कब होते हैं? वन, if 2 vectors are parallel to each other. Let's say A vector, B vector. First case. Second case, if 2 vectors are anti-parallel to each other. What does anti-parallel means? कि है तो पैरेलल ही बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. यहाँ पे है पैरेलल, डायरेक्शन भी क्या है? सेम है. और थर्ड, when 2 vectors are lying along the same line. Let's say A vector and B vector. So in all 3 cases, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल है. डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक नया नाम दे देता है एंटी पैरेलल, बट है तो पैरेलल ही ना. एंटी मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, नथिंग एल्स. क्लियर? अगर इन दोनों की बात करो, इसके लिए जो लाइन है सेम लाइन है, इसी के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वीडियो में. व्हाट इज सपोर्ट?
तो दोनों के लिए सेम है। ऑब्वियस एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो ये दोनों वेक्टर्स भी क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर कॉल्ड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। दैट मीन्स इन फर्स्ट केस, इन सेकेंड केस, इन थर्ड केस ए बी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? बट अगर हम फोर्थ केस लिखें जिसमें एक वेक्टर गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, सेकेंड वेक्टर गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, सो दीज आर नॉट कोलिनियर। वेरस अगर फर्स्ट थ्री केसेस की बात करें तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, सो ऑल थ्री आर कोलिनियर। क्लियर? ओके, सो दीज आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम काइंड। बट अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड केस की बात करें, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सिंपल, अगर हम कहें दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, ए बी सी डी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। फर्क क्या है दोनों में कि यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट्स और इसके दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है। दैट मीन्स दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट स्पोर्ट्स और डिफरेंट लाइन्स। ये अलग लाइन पे लाई कर रहा है, ये डिफरेंट लाइन पे लाई कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, सो ए बी और बी सी के बीच में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। ए बी और बी सी के बीच में एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। सो है दोनों वेक्टर कोलिनियर, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है, बट यहाँ पे भी दोनों कोलिनियर है पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। सो रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर, तो उनमें कुछ कॉमन हो भी सकता है पॉइंट, कोई पॉइंट कॉमन नहीं भी हो सकता। अगर हम तीनों पॉइंट्स की बात करें, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी की बात करें, तो फर्स्ट केस में 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है क्योंकि 2 अलग जगह पड़े हैं, 2 अलग जगह, बट यहाँ पे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। रिमेंबर, पॉइंट्स आर कोलिनियर इन दिस केस, नॉट इन दिस केस, but vectors are collinear in this case as well as in this case. So difference को याद रखिएगा कि lines की collinearity क्या होती है, points की collinearity क्या होती है। Is that clear or not, everyone? So it should be. So in simple terms we can say, if we're talking about whenever two vectors are collinear or parallel, then one vector is always a multiple of other vector, that is A. One vector is always multiple of other vector. Simple, this is not necessary कि B A का multiple होगा. It may be like this, A multiple of B. मतलब it can be any case, B can be the multiple of A can be the multiple of B. Reverse is also true. That means we can say collinearity कब होती है mathematically, when one vector is k times other vector, where k is any number, we can say scalar quantity. So यहाँ पे क्या क्या होता है, एक नंबर होता है. For example, just check it out. It can be like this, B is 2 times A vector. It can be like this, B is 3 times A vector. It can be like this, B is 1 by 2 times A vector. That is कि अगर हम दो वेक्टर्स को कोलिनियर कह रहे हैं, देन फॉर श्योर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होगा. इट कैन बी अ इंटीजर मल्टीपल, इट कैन बी अ फ्रैक्शन मल्टीपल, पर होगा क्या, मल्टीपल होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 3 वेक्टर्स. लेट्स से ए वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. आई एम राइटिंग बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3 by 2 j cap plus 3k cap. I'm writing one C vector which is 8i cap 7j cap plus 12k cap.
Now if you can check it out, just pay attention over there. You can see for first two vectors, if we talk about b वेक्टर में i का कोफिशिएंट क्या है 2 और a का क्या है 4, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाइड विद 2. लाइकवाइज अदर्स यू कैन चेक इट आउट. यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया. इट मीन्स इट वाज 1.5, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया. तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से. यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 हो गया. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद 2. मतलब अगर मैं बी वेक्टर के तीनों डिफरेंट कंपोनेंट्स को i j k को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वेक्टर आ रहा है a वेक्टर. दैट मीन्स आई कैन से a वेक्टर इज प्योरली 2 times b वेक्टर. यस और नो? बिल्कुल. You just try it out, multiply b with 2 and you will get a vector. But if we talk about c and a, just pay attention. Take 2 out of this. It becomes 4i cap. It becomes 7/2 j cap. It becomes 6k cap. Now you can predict. Although this factor is same, this factor is same, but this one is not same. रीज़न बीइंग कि जब सी वेक्टर बनाया गया तो ए के इस कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, दैट्स ओके. के कंपोनेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ओके. बट 3 को किससे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है 6 होता है. 2 कंपोनेंट 2 से मल्टीप्लाइड है बट थर्ड कंपोनेंट नहीं है. दैट मीन सी इज नॉट मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर. क्लियर? यू अंडरस्टूड व्हाई नॉट मल्टीपल? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नहीं बना. जैसे 4 को 2 से किया 8 हुआ, 6 को 2 से किया 12 हुआ, बट 3 को 2 से किया क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए था. सो दैट मीन्स वी कैन से A and B are collinear and we can say C and A are not collinear. So remember this thing, what is collinearity? It's quite important topic. Is that clear or not? In other way around, we can say one thing more if we want to check. Not in this way, in some other way. Just find the ratios of different components. Let's say this ratio 4/2. Then this ratio 3/3/2. Then this ratio 6/3. Now let's check it out. It becomes out to be 2. It comes out to be अगर हम देखें so it will be 3 into 2/3. Cancel out again, it will be 2. And it also comes out to be 2. तीनों की रेशो क्या है सेम है. That means one is 2 times the other. सो दोनों क्या है पैरेलल. दैट मीन्स व्हेन पैरेलल और कोलिनियर होंगे तो रेशो क्या होगी सेम होगी. whereas if we see in A and C, we see in A and C 4/8, इट डजेंट मैटर कि ऊपर कौन सा रखना है नीचे कौन सा रखना है. आप B को C को ऊपर लिख सकते हैं, A को नीचे लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू. देन 3/7, देन 6/12, 1/2, 1/2, but this is 3/7. Ratios are not equal to this one. That means कि यहाँ पे रेशियो सेम नहीं है तो A and C collinear नहीं है. Is that clear or not? What is meaning of collinearity when one vector is a multiple of other vector? Let us manipulate this in some other way as well. So अभी तक सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, नो वरीज. क्योंकि बच्चे देयर इज अ थिंग कि भागने से अच्छा सीखना जरूरी है, ठीक है. इफ़ यू आर रनिंग और रशिंग थ्रू दिस कि मैं जल्दी जल्दी से पूरा कर दूं तो समझ नहीं आएगा, तो जो टाइम आपने डिवोट किया है वो भी बेकार है, ठीक है.
आपने 30 मिनट्स 40 मिनट डिवोट किए, समझ आया नहीं तो वो 30-40 मिनट्स बेकार है। अगर उसमें अगर 20-30 मिनट्स और ऐड करके इसे हम समझ गए तो ऑल दो वी हैव स्पेंड 20-30 मिनट्स मोर, पर वो हमारे यूटिलाइज हो गए। और हमारा एज ए बीइंग स्टूडेंट मेन पर्पस क्या है? समझना, अंडरस्टैंड करना, नॉट भागना। क्लियर? सो डोंट रश थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? अच्छे से समझिए, डिवोट प्रॉपर टाइम टू दिस। निकालने को तो ये कंसेप्ट एक 5 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है, बट आई एम टेकिंग दैट मच टाइम जस्ट बिकॉज कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, हर एक चीज़ बारीकी से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना, सो हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन। हमारे पास ये वाली ऑप्शन थी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वी कैन से वन वेक्टर इज k टाइम्स अदर वेक्टर। वी आर मैनिपुलेटिंग नाउ दिस। This is bring this thing to left side. It will be b vector minus ka vector is equals to 0 vector. Now just think about, we can write it in number of different ways. First we can say b vector minus ka vector is equals to 0 vector. We can say अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को तो इट विल बी 2b वेक्टर माइनस 2ka वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज अगेन 0 वेक्टर। लेट्स से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 3b वेक्टर माइनस 3ka वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड ओवर देयर इज दैट कि जब हम कोलिनियरिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे थे कोलिनियर कब होते हैं? व्हेन b is k times a vector. सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है? सो यहाँ से हमें ये मिला, सो दैट मीन्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ कोलिनियरिटी। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, अगर ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है, और ऑपोजिट है ऑल्सो ट्रू, ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है। दैट मीन्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कोलिनियरिटी। अगर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सही है तो फॉर श्योर ये भी सही होगा, सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कोलिनियरिटी। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट कोलिनियरिटी इन डिफरेंट वेज। सो यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करने की क्या है कि b का कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इट कैन बी 1.5 एज वेल। अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ सो इट विल बी 1.5 b वेक्टर माइनस 1.5 टाइम्स k ऑफ a वेक्टर। कुछ ना कुछ ये भी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि k भी कुछ ना कुछ स्केलर है, ठीक है? सो इट मीन्स व्हाट वी कम टू नो ओवर देयर इज कि अगर कोलिनियर है, दो वेक्टर्स कोलिनियर है, सो हाउ कैन आई राइट? आई कैन से b वेक्टर मल्टीप्लाइड विद n, where n can be 1, 2, 3, 1.5 anything, प्लस m टाइम्स a वेक्टर m टाइम्स a वेक्टर, यहाँ पे m क्या है? माइनस k, माइनस 2k, माइनस 3k, माइनस 1.k इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। सो दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग कोलिनियर वेक्टर्स। जब भी वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी वेक्टर कोलिनियर होंगे तो किसी न एक वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस दूसरे वेक्टर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमेशा क्या वेक्टर आएगा? 0 वेक्टर आएगा। एक वेक्टर को एक पर्टिकुलर नंबर n से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को पर्टिकुलर नंबर m से मल्टीप्लाई किया, और जब ऐड किया तो किसके इक्वल आएगा? 0 वेक्टर। mn क्या हो गए? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? बट रिमेंबर इट इज हैपनिंग इवन a vector and b vector are non-zero vector. This is a special thing about this कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो a वेक्टर b वेक्टर 0 ना होने पर भी we have two numbers n and m जिनको उन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे किसके इक्वल होगा? 0 के। n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, m पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बट इफ वेक्टर्स
are not collinear, if vectors are not collinear, then we can write this thing, just a minute बच्चे. Okay, so we can write this thing only if n and m both are 0. n and m both are 0. So this is the difference बच्चे. अगर हम n and m को 0 लिए बिना, लाइक कुछ नंबर ले लिया, कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, उनको दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ऐड करने पे 0 आ गया, देन आई विल से a and b आर कोलिनियर. और वाइस वर्सा, अगर a और b कोलिनियर है तो इट इज़ पॉसिबल विदाउट मेकिंग 0 n and m. n and m 0 ना भी हो तो भी पॉसिबल है. बट अगर वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, देन वी कैन राइट दिस थिंग ओनली एंड ओनली इफ n भी 0 होगा और m भी 0 होगा. ईजी है. 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, 0 plus 0 is 0. Clear? So this is thing, we can write this. If vectors are collinear, we can not write this, but we can write if n and m are 0. What is the meaning of this? ठीक है? So that means we can write this if vectors are collinear, and if vectors are not collinear, we can not write this. क्योंकि उससे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है जब दोनों ही 0 है. Is that clear or not? So इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. Let's say let us try 2 or 3 questions on the same topic. Just a moment बच्चे, मैं क्वेश्चन लिख दूँ. So here is the question. Just go through the question. If a and b are non-collinear vectors, is talking कि हमारे पास 2 वेक्टर है a and b, दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है. दैट मीन्स दे डोंट फॉलो, जो भी हमने पढ़ा है इसमें. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर विच वेक्टर्स this is going to be alpha vector which is equals to this in terms of a and b. हमने a and b की terms में लिखा है. and this vector b again in terms of b, a and b are collinear. that means a and b collinear नहीं है, बट हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे अल्फा एंड बीटा क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए. नाउ थिंक अबाउट सॉल्यूशन. जब 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं, वी कैन से, जैसे अल्फा एंड बीटा कोलिनियर है, सो आई कैन से अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स बीटा वेक्टर. हमें x की वैल्यू फाइंड करने जिसके लिए ये कोलिनियर होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि दोनों कोलिनियर है. हम मान लेते हैं कि दोनों क्या है, कोलिनियर है, तभी x की वैल्यू पता चलेगी. अगर दोनों कोलिनियर हैं तो वन वेक्टर विल बी k टाइम्स अदर वेक्टर, जैसे भी हमने पढ़ा है. सो दैट मीन्स 2x plus 1 a vector minus b vector which is alpha vector is equals to k times x minus 2 a vector plus b vector, that beta vector. Now just do the multiplication. जैसे हम k को मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे जगह कम है तो इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, k फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और k सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा. या सुनो, इससे हो गया पूरी ब्रैकेट से. ठीक है, यहाँ पे भी हो गया. अब ध्यान देना बच्चे, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है आपस में. 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं. जैसे यहाँ पे कंपोनेंट है, ए वेक्टर भी एक कंपोनेंट है, बी वेक्टर भी एक कंपोनेंट है. यहाँ पे भी ए वेक्टर एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या है, बी वेक्टर है. अब 2 वेक्टर इक्वल हैं तो उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फॉर श्योर इक्वल होंगे. जैसे जो इसका कॉफिशिएंट है ए का, तो वही कॉफिशिएंट जहाँ पे ए का होगा, जो कॉफिशिएंट जहाँ पे बी का है वही यहाँ पे बी का होगा, तभी इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल ही नहीं हो पाएंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? सो दैट मीन्स जस्ट टू मेक दिस थिंग, जैसे कि हम कहें 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप. नेवर, क्योंकि यहाँ पे 2i है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2i
यहाँ पे 3j है तो यहाँ पे भी क्या जाएगी 3j। तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। सो इट मीन्स दिस 2x plus 1 will be equals to this k times x minus 2. And second thing, this coefficient that is minus 1 will be equals to k. So यहाँ से तो हमारी k की वैल्यू आ गई। k इक्वल होने पे k की वैल्यू कितनी होगी -1। जस्ट सब्स्टिट्यूट, अगर -1 पुट करें तो -b यहाँ पे हो जाएगा, -b यहाँ पे है। क्लियर? नाउ अभी k की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। सो इट विल बी लाइक 2x plus 1 will be equals to -1 into x minus 2. Further it will be 2x plus 1 will be minus x plus 2, minus x plus 2, ठीक है। माइनस एक्स इधर ले आओ, 1 उधर ले जाओ, माइनस विल बी प्लस दिस साइड, 2x प्लस x विल बी 3x इजिकल्स टू 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 minus 1 is 1, so x will be 1/3। मैथमेटिकल है लिटल, इसे इधर ले आओ, ठीक है, इसे उधर ले जाओ। सो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। दैट मीन्स these two vectors will be collinear in terms of a and b when x is 1/3। और जब 1/3 होगा तो अल्फा वेक्टर विल बी -1 टाइम्स बीटा वेक्टर, क्योंकि x k की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। दैट मीन्स अगर ये k भी निकालना होता तो वो भी निकल जाता, इट विल बी माइनस ऑफ बीटा वेक्टर। सो क्लियर है? लेट अस सी 1 or 2 more questions on the same. So here we have the question, show that points A to -2, 3 and 5, B 1, 2 and 3, C 7, 0 and -1 are collinear. Now think about, we are given with 3 points. We remember जब हमने collinear का concept पढ़ा था, we were having 2 cases, one is parallel, one is this. Here points were, if you remember, I written A, B, C, D, and here it was A, B, C. So अगर फर्स्ट केस होता तो हमें 4 पॉइंट्स दिए होते, 2 अलग के लिए 2 दूसरे के लिए, ठीक है। सो इट मीन्स 4 पॉइंट्स दिए होते, 2 से एक वेक्टर निकलता है, 2 से दूसरा वेक्टर निकलता है। बट सेकेंड केस में हमें कितने पॉइंट चलते हैं? 3 पॉइंट्स, बिकॉज B इज द कॉमन टू A एंड C। B AB में भी यूज होगा, B BC में भी यूज होगा, ठीक है। सो इट मीन्स व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये वाला केस चलेगा। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये वाला केस भी चल जाएगा। क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सो मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट मी थिंक कि हमारा ये वाला केस है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। सो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स निकालते हैं। दिस वेक्टर इज योर AB वेक्टर बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम A, it ends at B. Now this vector is your B and C vector because it starts from B and ends at C. And in our previous videos we learned कि जब भी हम AB वेक्टर लिखते हैं that is equals to final minus initial। जब भी हम एक वेक्टर लिखते हैं बच्चे, that will be final minus initial। जहाँ पे AB एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो 2 डिफरेंट अननोन पॉइंट्स के बीच है, जो दोनों पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बट वेयर एज B इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मीन्स इट इज द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट B, जबकि इसका पोजीशन वेक्टर है। एंड A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्योंकि देखिए बच्चे, यहाँ पे 2 लेटर्स यूज़ किए हैं, सो स्टार्टिंग एंड फाइनल दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे B यूज़ किया है तो स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओरिजिन होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आई का बटन अभी भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाइए देखिए और समझिए चीज़ों को, ठीक है। सो नाउ हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर जस्ट बाय दिस थिंग, 1x है, 2y है, 3j है, सॉरी z है। सो आई कैन से 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप। This is your B vector minus A vector क्या होगा, it will be
-2 I cap, 3 j cap plus 5 k cap. Yes or no? Good. Now just subtract the things. अगर हम subtract करें तो बच्चे इस माइनस की वजह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. Now 1 plus 2 is 3 I cap, 2 minus 3 is minus j cap, 3 minus 5 is minus 2 k cap. So we got AB vector. Now it is a time to find BC vector. So quickly BC vector will be C vector minus B vector, whereas C vector is, just check it out, 7 0 minus 1. So 7 I cap, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस k cap, क्योंकि ये z है, z को k से डिनोट करते हैं, x को I से और y को j से. माइनस b वेक्टर ऑलरेडी वी हैव रिटन ओवर देयर सेम. सो माइनस की वजह से तीनों प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस. सो माइनस आई कैप, माइनस 2 j कैप, माइनस 3 k कैप. लेट्स थिंक अबाउट 7 minus 1 is 6 I cap, minus k minus 3 k is minus 4 k cap, minus 2 j cap. सो पहले मैं j लिख देता हूँ, मुझे minus 2 j cap and minus 4 k cap. I think you guys can predict 3 का डबल 6, minus 1 का डबल 2 and 2 का डबल 4. That means अगर यहाँ से मैं 2 को निकाल दूँ, so it will be 3 I cap minus j cap minus 2 k cap. चेक कीजिए कहीं पे वेक्टर है, बिल्कुल है. सेम वेक्टर इज ओवर देयर, दैट मीन्स विच इज वेक्टर AB. That means BC vector is equals to 2 times AB vector, which is our condition for collinearity. That means all 3 points are collinear where B is the common point. So clear है? Even बच्चे अगर आप C को कॉमन लेके चलते, A को कॉमन लेके चलते तो भी हो जाता, नॉट अ इशू. वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है कि लाइक आई एम सेइंग आपने B कॉमन लिया तो दोनों वेक्टर ऐसे बन गए, ठीक है. अगर C को कॉमन लेते तो सबसे पहले आप बनाते AC वेक्टर, देन आप बनाते CB वेक्टर या फिर BC वेक्टर. स्टिल ओके. अगर A को कॉमन लेते तो ऐसे चेंज हो जाता. सो वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की लेंथ चेंज होगी, बट रहेंगे वो कोलिनियर ही. क्लियर? सो ओके बच्चे, आई थिंक दैट्स इनफ अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. सो आई हैव डिस्कस्ड कोलिनियरिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लिए, ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आने चाहिए. ठीक है ना. देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल जो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में फॉर श्योर डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे. ठीक है. एंड सो गो थ्रू दिस वीडियो. अगर पिछली लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी सो गो थ्रू देम एज वेल. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन बिलो. सो कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.